اپنے بھتیجا کے لیے دیں اور اپنے جو ہے نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے اس ابھیندن سماروہ کے اختتام کا بھی اعلان کریں۔ ادھیکشیہ بھاشن کے لیے میں آمنترت کر رہا ہوں ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس ایشور کے لیے، اس خدا کے لیے جس نے ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا، اور درود و سلام ان سارے انبیاؤں پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں رحمت پھیلی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس بچے کا رزلٹ آیا تو سب سے پہلا فون جو ہم کو کیا وہ فیض رسول صاحب نے کیا، مبارکبادی کر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس بچے کے لیے ایک استقبالیہ دوں گا۔ ہم کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی اس موضوع پر ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب دعوت نامہ ملا اور یہاں آئے تو دیکھنے کو جو ملا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی انہوں نے خلوص دل سے مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں کیا سکتا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اگر مبارک کے مستحق ہیں تو فیض رسول صاحب ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے بعد۔ بہت سے پروکتا نے یہاں پر بہت ساری باتیں کی ہیں، سب کی باتوں کو تو ہم کوٹ نہیں کر سکتے، سبوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور سبوں نے اس لڑکے کی دلجوئی اور دوسرے بچوں کو جو ہے اس پر ابھارنے کی کوشش کی، سبوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن کچھ باتیں جو ہمارے دل کو لگی ہیں کچھ مقرر کی، وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو شیئر کریں۔ جیسے کہ منظر حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پاور اور عہدہ دیا ہے اس کا استعمال آپ عوام کے بھلائی کے لیے کریں۔ یہ بڑی 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 بہت بڑی بات انہوں نے کہی اپنے تقریر میں۔ یہ پاور اور یہ عہدہ استعمال کس کے لیے ہوگا؟ عوام کے لیے، فائدے کے لیے ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات لگی ہم کو۔ اور اعزاز عالم صاحب نے جو مختصر گفتگو کی اس میں ایک بات ہم کو بہت پسند آئی کہ کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے کانٹوں بھری راہ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی ممکن نہیں ہے یہ کہ آدمی کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ راہ جو ہے بڑی کانٹوں بھری ہے۔ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے بتائی۔ اور جناب علی کریم صاحب نے جو ایک بات کہی کہ آدمی اپنے رتبہ اور اپنے اونچے خاندان سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو اچھی کارکردگی ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اس کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے۔ ڈاکٹر رچدانند جی، واہ، بہت خوب انہوں نے بات کہی ہے کہ والدین کے لیے سب سے بڑی اپلبدھی ان کی اچھی اولاد ہے۔ بہت شاندار بات انہوں نے کہی ہے، اس پر میں جھوم گیا اندر سے۔
सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी वालिदैन की हो सकती है तो उसके लिए वो अच्छी औलाद है। ये बहुत अच्छी बात। ये रणविजय सिंह जी, इनकी बात भी एक बहुत पसंद आई हमको। उन्होंने ये कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, बल्कि सही शिक्षा उसके अंदर अगर पैदा हो जाए तो असल ज़िंदगी उसकी वो ज़िंदगी है। इसलिए आधे रोटी खा करके भी जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और उसको पढ़ाइए। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही जो दिल को छू लेने वाली है। और डॉक्टर अल्तमस गाजी का कोई कोटेशन हम कोट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो भी गुफ्तगू हुई है वो कोटेड ही है। हर बात उनकी जो है वो मतलब यह है कि अपनाने की है और उस पर अमल करने की है। डॉक्टर अशफाक करीम जो हमारे सबसे आखिरी प्रवक्ता, डायरेक्टर कटिहार मेडिकल कॉलेज के, वो तो चले गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि कामयाब इंसान वो है जो अपने अंदर कमियों को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करे, अपनी नाकामी की जिम्मेदारी दूसरों पर न डाले। ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने कहा, और इसको दरअसल हम लोगों को समझने की ज़रूरत है इस बात की। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम जब नाकाम होते हैं तो कहते हैं कि भाई वो हमारे साथ मतलब ये है कि तअस्सुब बरता गया, हमको जो है तो अच्छा नंबर नहीं दिया गया, या हमारे साथ उन्होंने ये सलूक किया। अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी हम दूसरों पर डालना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं खोजते कि हम किस कमियों की वजह से मतलब ये है कि नाकामयाब हुए। तो ये चीज़ जो है, ये सारे लोगों ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अच्छी हैं और दिल को छू लेने वाली हैं, और सिर्फ सुन करके झूम जाना ही नहीं बल्कि उसके मुताबिक जो है अमल करने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है। अब एक छोटी सी नसीहत के साथ जो है मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। देखिए, इल्म हासिल करने के दो ज़राए हैं। एक ज़रिया है इक्तसाबी, यानी एक्वायर्ड नॉलेज। सबसे पहला आदमी जो अल्लाह ताला ने बनाया तो सबसे पहले सारे एशियाओं की इल्म और उसकी हकीकत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया, और फिर मतलब यह है कि वो इल्म जो है वो फैलता गया। एक आदमी जो किसी इल्म को हासिल करता है वो अपनी मेहनत से करता है, सुनता है, देखता है, छूता है, चखता है। ये जो सेंसेस हैं उसके ज़रिए से वो इल्म हासिल करता है, और इस इल्म को जो है वो जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो अक्ल है, वो उसको प्रोसेस करती है और फिर इसको मेमोरी में सेव कर लेती है। इस तरह से हमारा इल्म बढ़ता रहता है, और इसके लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ता है। इस जद्दोजहद के ज़रिए से जो इल्म मिलता है हमको, इसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म सिखाया गया था वो एक्सप्लाइट होते बढ़ते उसका जो इतना एक्सपेंशन हुआ है कि आज 50 साल के अंदर में जो इसमें मतलब यह है कि डेवलपमेंट हुआ है, इसका अंदाज़ा हम लोग कर भी नहीं सकते। खासकर कम्युनिकेशन के लाइन में जो डेवलपमेंट हुआ है ये बिल्कुल मतलब कि आदमी के सोच से बाहर है। ये सब क्या है? ये सब एक्वायर्ड नॉलेज है, ये जो हमने हासिल किया है। दूसरा नॉलेज का ज़रिया ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए से अपने ख़ास बंदों के ज़रिए से अल्लाह ताला वो इल्म दुनिया वाले को देता है। लगभग 1,24,000 पैगंबर
ईस दूत इस दुनिया में आए, इन सब ईस दूतों के ज़रिए से जो इल्म हमको मिला है वो दरअसल इल्हामी इल्म है, जिसको रिवील्ड नॉलेज भी कहा जाता है। तो ये रिवील्ड नॉलेज हमको बताता है कि हमारा जीवन व्यवस्था कैसा हो, हमारे अखलाक कैसे हो, हमारे जो ताल्लुकात हैं एक दूसरे के वो कैसे हो, अच्छा क्या चीज़ है, बुरा क्या चीज़ है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता बुरा है, किसके क्या हकूक़ हैं, ये सब तय करता है वो इल्हामी इल्म। अब हमको इन दोनों इल्मों के ज़रिए जो है ये सोचना पड़ेगा कि जो एक्वायर्ड नॉलेज हमने हासिल किया है उसको रिवील्ड नॉलेज के ताबे कर दिया जाए, उसको ओबीडियंट बना लिया जाए। अगर एक्वायर्ड नॉलेज रिवील्ड नॉलेज के ताबे नहीं होगा, उसका ओबीडियंट नहीं होगा, तो करप्शन फैलेगा, वो करप्शन फैलेगा। रोड बनेंगी, एक साल में वो रोड टूट जाएगा। हर डिपार्टमेंट में आपको करप्शन नजर आएगा, क्योंकि आपने एक्वायर्ड नॉलेज तो हासिल कर लिया, लेकिन उस नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के मुताबिक आपने नहीं बरता, जिसके नतीजे में ये हुआ कि हर जगह आप करप्शन फैलाने वाले बनेंगे। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि जो एक्वायर्ड नॉलेज इस बच्चे ने हासिल किया है उस नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के ताबे बना दे। तब ये जिस डिपार्टमेंट में भी होंगे उस डिपार्टमेंट से करप्शन दूर होगा और वहाँ इंसाफ पैदा होगा, वहाँ अमन और अमान पैदा होगा और हर तरह की खराबी वहाँ से दूर होती चली जाएगी। ऐसा अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी इनकी मदद फरमाएगा और फिर ये अवाम के लिए फ़ायदा मंद भी होंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे और इनको जो है जो लियाकत जो नॉलेज इनको दिया है उस नॉलेज को उससे इल्हामी नॉलेज के मुताबिक गुजारने और बरतने की तमन्ना रखें और उसकी कोशिश करें। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।